السلام علیکم. کشمیر بلیٹن میں میں اعظم علی خان یوسف زئی. سب سے پہلے کشمیر بلیٹن کے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے. وادی کشمیر میں سخت ترین سیکیورٹی، امت شاہ کا دورہ بھی متوقع. پولیس نے گزشتہ شب حملوں کے ضمن میں 4 افراد کو گرفتار کیا. کشمیر میں عام شہریوں کی ہلاکت پر فاروق عبداللہ جذباتی ہو گئے. جموں اور دیگر مقامات پر احتجاجی مظاہرے. مہلوک پنڈت کی دختر بھی جذباتی ہو گئی. ضلع گاندربل میں مثالی شادیاں. بابا ویل گاؤں میں نہیں لی جاتی ہیں جہیز کی رقم. فوج کسی بھی چیلنج کے لیے ہے تیار. جی او سی جے پی پانڈے کا بیان. کرن کپواڑہ میں فوج کی جانب سے میلے کا انعقاد. اور ضلع پلوامہ کے وچھ پورہ میں چوروں نے 2 لاکھ روپے کے سیب چوری کر لیے. پولیس مصروف تحقیقات. وادی کشمیر میں سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں. ہمارے نمائندے کے مطابق گزشتہ شام ہوئے نامعلوم بندوق برداروں کے حملے میں 3 افراد مارے گئے تھے. اس ضمن میں پولیس نے 4 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے. ان سے پوچھ تاچھ بھی جاری ہے. وزیر داخلہ امت شاہ کا دورہ بھی متوقع ہے اور اس ماہ وزیر داخلہ امت شاہ کشمیر کا دورہ کر سکتے ہیں. گزشتہ شام وادی کشمیر کے 2 اضلاع میں چند گھنٹوں کے دوران 3 عام شہریوں کی ہلاکت کے بعد جہاں شہر سری نگر، بانڈی پورہ اور دیگر اہم تنصیبات پر سیکورٹی میں چوکسی برتی جا رہی ہے اور اضافہ کیا گیا ہے، وہیں وزیر داخلہ جو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ہے، ان کا جو متوقع دورہ اس مہینے کے وسط میں ہے، اسے دیکھ کے اس سیکورٹی میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ سیکورٹی ایجنسیوں اور دیگر فورسز کو الرٹ رکھا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے جب وزیر داخلہ امت شاہ جموں کشمیر کا دورہ کریں گے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سیکورٹی کے حوالے سے کیا وہ مزید سخت اقدامات کے احکامات جاری کریں گے یا کہ جو سیاسی ہلچل ہے اس میں بہتری کو دیکھ کچھ بڑا فیصلہ کرنے والے. یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، لیکن جس طرح کی گزشتہ روز ہلاکتیں ہوئی ہے اس کی وجہ سے شہر سری نگر میں خاص کر سیکورٹی کو مزید بڑھا دیا گیا ہے. شجاع کے ساتھ شبنم فیاض، 4 TV نیوز. جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے گزشتہ روز وادی میں عام شہریوں کی ہلاکت پر برہمی کا اظہار کیا. فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ شیطانوں نے یہ حرکت کی ہے. انہوں نے کہا کہ فارمیسی کے مالک کی ہلاکت پر یہ شخص غریبوں کی خدمت کیا کرتا تھا لیکن اسے بھی مار دیا گیا. فاروق عبداللہ پنڈت مکھن لال بندرو کی آخری رسومات میں پہنچے تھے. کئی سیاستداں آج بندرو کی آخری رسومات پر پہنچے ہیں. اس بیچ عسکریت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہوئے کشمیر پنڈت ایم ایل ڈینڈرو کی دختر شاردا نے کہا ہے کہ آخر ان کے والد کی غلطی کیا تھی. جو شخص ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا رہا اسے ہی مار دیا گیا. کشمیری پنڈت کی دختر جذباتی ہو گئی تھی اور رو پڑی تھی. کیا کریں یار، آج اس دنیا کو چھوڑ گیا ہے، اس کو ہمارے شیطانوں نے اسے مار ڈالا ہے. اس بیچارے نے ہر ایک کی خدمت کی، اس نے لوگوں کے لیے سب کچھ دیا. جب لوگ یہاں سے بھاگ گئے وہ نہیں بھاگا، وہ یہیں رہا کہ میں نے غریبوں کی خدمت کرنی ہے. یہ میں کیا جانتا ہوں، یہ سرکار سے پوچھیے. میں نہیں بتا سکتا کتنی خدمت کی ہوگی یہاں کے لوگ.
ये लोगों को जो गरीब थे, हर तरफ से मदद, दरिंदे ने देखा नहीं। तो जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता रोज़ वादी में आम शहरियों की हलाकत पर बरहमी का इजहार किया था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि शैतानों ने यह हरकत की है। उन्होंने कहा कि फार्मेसी के मालिक की हलाकत पर ये उनका कहना था कि ये शख्स गरीबों की खिदमत किया करता था, लेकिन उसे भी मार दिया गया। फारूक अब्दुल्ला पंडित मक्खन लाल बिंद्रू की आखिरी रस्मात में पहुंचे थे। कई सियासतदान आज बिंद्रू की आखिरी रस्मात पर पहुंचे। इस बीच अस्कर पसंदों के हमले में हलाक हुए कश्मीरी पंडित ML बिंद्रू के दुख्तर शारदा ने कहा है कि आखिर उनके वालिद की गलती क्या थी। जो शख्स हमेशा दूसरों की मदद करता रहा उसे मार दिया गया। कश्मीरी पंडित की दुख्तर जज्बाती हो गई थी, रो पड़ी थी। What a wonderful person he was. I mean, being a chemist, but he made a personality of his own that everybody loved and respected him. Reason was he was a man of principles. He would never do anything which was unethical, and he lived his whole life with that principle. A man who gave 40 years to the service of Kashmir. Listeners are coming from all the walks of life, Hindus, Muslims, Sikhs, you can see everybody is here. And had it not been the era of COVID, you would have seen lakhs of people here. He was a man loved by all. It is irrespective of religion. So a great man has passed away. कि प्यार का ही और अमन का रास्ता तो अल्लाह ताला का ही रास्ता है, राइट? तो दिस इज द ओनली मैसेज जो मैं सबको देना चाहूँ। किस चीज से डरेगा? तो जब आपका शरीर मरेगा ना। डरने, मेरे फादर का शरीर पड़ा है वहां पे, मेरे फादर की रूह चली गई। जब रूह में ही डर नहीं है, जब रूह की स्पिरिट में ही हम डर ही नहीं सिखाया मेरे फादर ने, तो डरना किस बात? मक्खन लाल बिंद्रू का सिर्फ शरीर पड़ा उधर, जो भी सिर्फ जल जाएगा वो तो हम सबका जलने वाला है, तो क्या फर्क पड़ता है? उनका थोड़ा पहले जल जाएगा, हमारा थोड़ा बाद में जलेगा। आज इस दुनिया को छोड़ गया है, उसको हमारे शैतानों ने उसे मार डाला है। देखिए, ये इंसानियत का खून है। ये तो एक बिंद्रू साहब का खून है, ये इंसानियत का खून है। जो इंसान हमारी जिंदगियां बचाता था, शर्मिंदा है इसके लिए, लेकिन क्या करें, हम बेबस हैं सब लोग। हाँ, कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो लोग कामयाब हो जाएंगे इसमें। हाँ, इंसानों की उन आम इंसानों की जिंदगियां ली जा रही है जिनका किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं शबनम फयाज के पास। शबनम फयाज इस वक्त हमारे साथ फ़ोन पर हैं। शबनम फयाज 4TV के नुमाइंदे हैं। क्या शबनम फयाज आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, क्या कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? क्या तफसीलात बताई जा रही हैं? देखिए, जिस तरह से गुज़िश्ता रात शाम ही हम कहेंगे कि 7 से 9 बजे तक 3 हलाकतें हुई आम शहरियों की, जिसमें डॉक्टर मक्खनलाल बिंद्रू, जो बिंद्रू मेडिकेट के नाम से काफी मशहूर थे और काफी नाम था उनके मेडिकल स्टोर का, और जहां एक दो जगहों पे इस तरह के स्टोर चला रहे थे, और जब उसकी गोलियां मारकर हलाक उसे किया गया। साथ ही जो लाल बाजार का इलाका है, वहां भी एक गैर रियासती जो पानी पूरी बेचने वाला एक शख्स है, रेडे फरोश, उसकी हलाकत भी इसी तरह गोली से उस पे गोली से हमला किया गया और गोलियां मारकर उसे हलाक किया गया। जबकि देर देर तक शाहगुंड बांडीपुरा का जो इलाका है, वहां भी एक मोहम्मद शफी नामी शख्स को, जो सोमो स्टैंड का एक सदस्य बताया जाता है वहां नायक खैर में, उसको भी गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। तो 3 हलाकतें जब हुई तो सूरत हाल काफी कशीदा हुई, लोगों में खौफराज का माहौल भी पैदा हुआ, और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में तलाशी कार्रवाई भी शुरू की और हर जगह पे हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई। आज सुबह भी इसी तरह की नाकाबंदी थी, और अभी तक जो है इतलात है कि 5 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, और जो फोर्सेज है, जो सिक्योरिटी एजेंसियां है, वो चाहती है कि इस तरह की हलाकतों के पीछे जिन लोगों का हाथ है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जो होम मिनिस्टर है वजीर दाखिला अमित शाह, वो इस महीने के आखिर तक मुतवक्का उनका दौरा है जम्मू कश्मीर, जो 3 दिन तक हो सकता है। तो जाहिर सी बात है वो दाखिला वजारत संभाल रहे हैं, और सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक मिनिस्टर मरकज की जो है वजीर दाखिला, वो यहाँ पे विजिट पे आ रहे हैं, और साथ साथ इस तरह की हलाकतों को रोकना भी जरूरी है, और इनके जो इसके जिम्मेदार है उनको गिरफ्तार करना भी जरूरी है, जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है या मानना है। और जिस तरह से मरकजी सरकार लगातार दफा 370 हटाए जाने के बाद
یہ کہہ رہی ہے کہ صورتحال بہتر ہے، وہاں اس طرح کی ہلاکتوں کے بعد جو عوام میں تشویش کی لہر ہے اور جو جتنی بھی یہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس طرح کی ہلاکتوں کی مذمت کی ہے. یہ عام شہری تھے جو لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے، اس میں ایک بیل پوری بیچنے والا شخص بھی بتایا گیا، لیکن اس طرح کے واقعات پہلے بھی کبھی پیش آئے تھے یا پھر یہ اپنی نوعیت کا ایک نیا ہی واقعہ ہے؟ کیا عام شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا؟ اس طرح کے واقعات جب ہم اگر بات کریں، جب 1990 میں یہاں پہ ایک بندوق کی لہر چلی ہے، جب یہاں عسکر پسندوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد سے اس طرح کی کئی ہلاکتیں ہوئی ہے جو سینکڑوں میں ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کی ہلاکتیں ہوئی ہے جو نامعلوم افراد کے ہاتھوں مارے گئے، اس طرح کے واقعات رونما ہوئے. لیکن جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جب نامعلوم بندوق برداروں کے ہاتھوں یہ کہیں، حالانکہ فورسز کا ماننا ہے کہ ملیٹنٹس ہے، لیکن جب کوئی ملیٹنٹ تنظیم اس کی ذمہ داری نہیں لیتی ہے تو ایک اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے جس سے لوگوں میں کافی تشویش بڑھ جاتی ہے. اور یہ صرف آج نہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کی ہلاکتیں ہوئی ہے. جو اہم شخصیات ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہے، اسی طرح انہیں گولے مار کر ہلاک کیا گیا، جس کی وجہ سے یہاں کے عوام کو کافی تشویش پیدا ہو جاتی ہے جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں. کیا وجہ یا کیا موٹو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ آپ اس بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں وہاں کے حالات کو، تو کیا موٹو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، کچھ بھی ہو، یہاں پہ جو حالات بنے ہیں کوئی اندازہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں رہتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اور جب جس طرح میں نے کہا کہ جب نامعلوم افراد کے ہاتھوں یہ کہا جاتا ہے کہ بندوق کے ذریعے سے گولیاں چلائی، پسٹل کے ذریعے سے گولیاں چلائی گئی، پھر کسی کی ہلاکت ہوتی ہے، تو یہ ایک چیلنج رہتا ہے سیکورٹی ایجنسیوں کے لیے، فورسز کے لیے، پولیس کے لیے، ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے. کیونکہ جب شناخت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جلد از جلد اس میں ایک آپریشن شروع کیا گیا ہے تاکہ حملہ کی تلاش ہو اور انہیں گرفتار کیا جائے. پھر پولیس کی جانب سے بھی سامنے ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. لیکن جس طرح آپ کا یہ ماننا ہے کہ یا کہنا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو، جب گولی چلتی ہے تو حالات جو ہے خراب ہوتے ہیں، اور حالات خراب ہونے کا بہت سے لوگ جو ہے بہت سے طریقوں سے اپنے فائدے بھی لیتے ہیں. لیکن ایک عام انسان جو ہے، عام کشمیری جو ہے، اس کے لیے ایک کافی مشکلات کا وقت ہوتا ہے، تکلیف دہ وقت ہوتا ہے. کوئی بھی ہو، یہاں کا بھائی چارہ ہمیشہ رہا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. جموں کشمیر کی اگر بات کریں، خاص کر وادی کشمیر کی، یہاں کے عوام نے ہر وقت جو ہے انسانیت کا ساتھ دیا ہے. اور جو عام شہریوں کی ہلاکت ہوتی ہے اس پر سبھی ناراض بھی ہوتے ہیں اور تکلیف بھی سبھی کو پہنچتی ہے. جی شکریہ شبنم فیاض، اپنا خیال رکھیں. تو یہ تھے شبنم فیاض، تفصیلات بتا رہے تھے. ضلع گاندربل کے بابا ویل گاؤں میں مثالی شادیاں انجام دی جاتی ہیں، اور اس گاؤں میں پچھلے 40 سالوں میں ایسی کئی شادیاں انجام دی گئی ہیں جس میں جہیز نہیں لیا گیا ہے. یہاں کے مقامی ڈار مشتاق کے مطابق مسلم معاشرے میں شادی کو آسان یعنی سہل بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. شادی سے پہلے دلہے کے افراد دلہن کی خرید و فروخت کے لیے کچھ ہزار روپے دیے جاتے ہیں، یعنی دلہن کی خریداری کے لیے دلہن کو کچھ ہزار روپے دیے جاتے ہیں. اسی میں دلہن کے کپڑوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. ڈار مشتاق کے مطابق فضول خرچی اور جہیز کو ختم کرنے کا بیڑا بہت حد تک کامیاب ہوا ہے. دہیج کو ختم کیا ہے، نہ ہم دہیج لیتے ہیں نہ ہم دہیج دیتے ہیں. آپ نے اس کاغذ کو بھی دیکھا جو ہم نے ایک ایفیڈیوٹ بنایا تھا 2004 میں، اور 1980 سے میں نے اس بدعت کو ختم کرایا ہے انشاءاللہ. اور ہم نے اور ایک کاغذ بنایا ہے، ایک ایفیڈیوٹ بنایا ہے کچھ مہینے پہلے، جو آپ نے دیکھا بھی. تو اسی کے حساب سے ہم یہاں پر اپنا شادیہ عمل میں لاتے ہیں. تو کوئی اس سے باہر نہیں نکلتا ہے. ہم صرف 20,000 روپیہ مہر، 30,000 ہم لڑکی والوں سے لیتا ہے، ایک لڑکی والوں کو دیتا ہے ایک امداد 30,000 روپے، جس میں وہ لڑکی کے لیے کپڑے بناتے ہیں اور باقی مزید سامان خریدتے ہیں. 20,000 صرف مہر ہم رکھتے ہیں، اس سے آگے کوئی چلے گا نہیں. تو اگر کوئی کروڑ پتی بھی ہوگا، ارب پتی بھی ہوگا، لاکھ پتی بھی ہوگا، وہ اس سے آگے چلے گا نہیں، اس سے آگے وہ بڑھے گا نہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اور ایک کاغذ بنایا ہے ایک مہینے سے پہلے، جس پہ ہم نے نوجوانوں کو یہ
गाइडेंस दी है कि आगे आगे कैसा चलना है। हम 53,000 के रुपयों से अपना शादी को तय करते हैं, बाकी कोई न दहेज लेते हैं न दहेज देते हैं। छोटा था, इस वक्त मैं 67 साल का हूँ। जब मैं छोटा था उस वक्त यहाँ शादी पर खर्चा होता था 500-600 रुपये। जब मैं छोटा था उस वक्त महर जो था 300 रुपया था और मंगनी निशानी पर 50 रुपया 51 रुपया खर्च होता था। ये वो जमाने की बात नहीं करता। उसके बाद कुछ सालों के बाद वो महर जो है वो 900 पर पहुंच गया। फिर 900 देते थे हम महर, और उस जमाने में 3,000-4,000 रुपया खर्चा आता था शादी पर। तो हमारे यहाँ हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने आज फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से बात की है। उन्होंने कहा है कि ये मुलाकात गुज़िश्ता शब हुए हालात पर ताज़ियत के लिए की गई थी। देवेंद्र सिंह राणा ने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की है और मौजूदा हालात पर उन्होंने बात की है। हम लोग कंडोलेंस के लिए आए थे और हमने ताज़ियत की और इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट डॉक्टर साहब एंड उमर साहब। दैट्स ऑल। तो आपके एनसी छोड़ने के हवाले से कोई बात हुई राणा साहब? कोई बात हुई उस हवाले से? यू आर ऑल फ्रेंड्स, इफ देयर इज एनीथिंग आई विल लेट यू नो, बट राइट नाउ we had come for a condolence. We've done the condolence, and You are still part of national conference, sir? as I talk to you, yes, Sir, ताज़ियत की। बिजबहरा जामा मस्जिद के करीब बल्दिया की लापरवाही से मकामी अवाम सख्त परेशान है। मकामी अवाम का कहना है कि बल्दिया के अरकान की जानिब से कचरे की निकासी नहीं हो रही है। मकामी अवाम का ये भी कहना था कि ये तारीखी कस्बा बल्दिया की अदम तवज्जुही और लापरवाही के बास कूड़ेदान में तब्दील हो रहा है। कचरे के बास मच्छरों की अफजाइश हो रही है, बीमारियां फैलने का खदशा भी बरकरार है। बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि मतलब आपकी वसादत से मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ इस टाउन एरिया कमेटी लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट को। इन्होंने डस्टबिन तो वाकई हमें दिए हैं, 2-2 डस्टबिन हर एक घर को दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन से हमें स्वीपर यहाँ पर नहीं आए जो डस्टबिन हमारे लेते थे। अनफॉर्चुनेटली मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, बहुत बार मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि भाई ये डस्टबिन हमारी उठाओ, या इससे डिफ्यूजन गैसेस यहाँ पर पैदा हो गई है, दिस विल क्रिएट एयर हैवक। इस फैसिलिटी में तो अब यहाँ हैवक बन जाएगा, हैवक की वजह से तो पता नहीं कितने बंदे बीमार हो जाएंगे। बार बार मैंने कल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फोन भी किया है कि उसने वापस जवाब मैसेज में भेजा है कि आई विल कॉल यू बैक, बट टिल डेट आई हैव नॉट रिसीव्ड कॉल फ्रॉम हिम। लेकिन टिल डेट में कोई उनसे रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। आज सुबह यहाँ पर एक स्वीपर आया था रेड़ा लेके, उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारी डस्टबिन ले लो, उसने रिफ्यूज किया कि हम इसके लिए नहीं है, यू कैन टॉक टू योर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर मैंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फिर फोन किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। पता नहीं कि मतलब हमने कौन सी गुनाह किए हैं, कौन सी गलतियां हमने की हैं कि जिसका हम सजा इस वक्त भुगत रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप आला हुकाम तक ये बात पहुंचाएंगे, और ताकि हमारा ये मसाइल है यहाँ पर दीराना मसाइल है, 5-7 दिनों से मसाइल हमारा जो है ये हल हो जाएगा। जिले पुलवामा के त्रिचल में 55 RR फौज की जानिब से खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया है, जिसमें फौज के कई जवानों ने अपने खून का अतिया दिया है। वाज़ेह रहे कि फौज की जानिब से कश्मीर के कई अजला और कस्बों में मुफ्त मेडिकल कैंप या खून के अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाता है।
कुलगाम में पेंशनर्स की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है जिसमें डीए में इजाफा करने और मेडिकल अलाउंस को 700 रुपये का इजाफा करने की मांग की गई है। ताकि ये सान ट्रेड यूनियन पचे अमिस प्रेसिडेंट सिंदिस सदारतस अंदर तो इंशाअल्लाह रहमान खुदा संपत पर शेखन वरिया 6 हड़ताल के जम्मू कश्मीर डिमांड है। एक बात यह है कि 3% डीए 2020 का डीए जो 9% है वो रिलीज होना चाहिए इमीडिएटली। तो दूसरी बात यह है कि 70 इयर्स के बाद हमारा अनाउंस पेंशन जो थ्रू आउट यूनाइटेड नेशन का चार्टर है और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है वो 70 के बाद इंक्रीज होना चाहिए 10%। उसके बाद हमारा ये है कि ये उस सिलसिले में मेडिकल अलाउंस जो 300 मिलता है हमको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी है बजट पास पार्लियामेंट करती है, अभी स्टेट नहीं है, तो उनको जब मिलता है 1000 मेडिकल अलाउंस बिसाइड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट 1000 वो 700 रुपया हर पेंशनर को इंक्रीज होना चाहिए एज पर सेंट्रल पैटर्न। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 60 लाख पेंशनर है उनको मिल रहा है। क्या लगा जिले हिंदवाड़ा के एक मदरसे में आग लगने का वाकया पेश आया है। ये आग मंगल की देर रात लगी थी और बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड अमले ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। जराये के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने का वाकया पेश आया है। जिले हिंदवाड़ा बारीपुरा हिंदवाड़ा के मदरसे में आग लगी थी। तो घर क्यों खुरशोर मे दोप हमसायन शायद क्या थी अत वुच मे आंगनस मज लाइट तेज बह दवान ऐसे सारी सोरे महल पितर भाई आए सारी तो ये वुच ये तेज नार शायद नबर योकन बूथ बना कर यूत नार जबरदस्त तेज वन गो ये दारुल काफी नुकसान हद को ज्यादा चूंकि यह इदार सोन तमाम वन पन्नस पानस वन तमाम लुकन वन चूंकि तहदे मदद सद खुदा सद मदद सद तम पे अवाम नास मदद सद गन ये हेल्प भरपूर ताउन गन बचन गह तकलीफ। तकरीबन 2 से लेकर 2:30 बजे तक आग नमूदार हुई। तकरीबन ऊपर की साइड यानी छत की तरफ से अचानक आग नमूदार हुई। लड़के होशियार हो गए तो हम भी होशियार हो गए। तो आग बहुत भयानक थी, बड़ी खतरनाक आग थी जिसकी वजह से एक पूरी बिल्डिंग आग की लपेट में आ गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सही सलामत है, सब बच्चे ठीक है। हालांकि बच्चों का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इदारे का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये पूरी उम्मत का नुकसान है, लेकिन बच्चे फिलहाल सही सलामत। उम्मत मुस्लिमा से क्या अपील करना चाहते हैं आप? बस अवामुन्नास से बिलखुसूस अवामुन्नास से बिलउमूम और पूरी उम्मत मुस्लिमा से खुसूसन इस इलाके से हमारी यही अपील है। जिले इंतजामिया कुलगाम ने आज जिले के 3 ब्लॉक्स में मेगा ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया ताकि आवाम के मसाइल और शिकायत और उनके अजाले के मुतालबात का जायजा लिया जा सके। आज के प्रोग्राम को जबरदस्त अवामी पजीराई मिली है और लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान और अहलकार तीनों मकामात पर दस्तियाब रहे और तीनों मकामात पर बर वक्त अजाला के लिए लोगों के मसाइल, शिकायत और मुतालबात सुने गए। ये हर बुधवार को ब्लॉक दिवस होता है। यहाँ पे लोग आते हैं अपने मसाइल लेके। तो यहाँ पे क्या होते हैं, सारे अफसरान होते हैं, डीडीसी मेंबर, बीडीसी मेंबर होते हैं, बीडीसी होते हैं, यहाँ पे सरपंच होते हैं,
5 होते हैं, जिसको भी मसला मसाइल होता है यहाँ पे, जो सीरियस मसला होता है डीसी साहब सुनता है, जो सीरियस होता है मसला वो यहीं पे हल कर देता है, जो जिसमें 2 दिन लग जाता है उसको यहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन को बता देता है कि ये कल तक मेरे टेबल पे होना चाहिए, तो वो मसला हल हो जाता है। ये शुक्रगुजार बहुत हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे डीसी साहब है कि कुलगाम की शान है कि जो मसला उठाते हम उसको बताते हैं तो वो हल हो जाता है, लोगों के मसले हल होते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, फिर से दोबारा कह रही हूँ, हम खुशकिस्मत है डीसी साहब आए हमारे मसले हल करते हैं। जिले पुंछ में आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल में महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के जानिब से सफाई मुहिम चलाई गई है। महोत्सव प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से सफाई मुहिम चलाई गई है और इलाके को साफ किया गया। इस मौके पर तमाम तलबा और असातिज़ा ने मुहिम में हिस्सा लिया है। इसमें ये हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कैलेंडर इशू किया था, जिसमें 6, 7 और 8 तारीख का जो 3 दिन हमें यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दिए हुए हैं, उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे तमाम 11 जोन्स में जो है ये एक्सरसाइज सफाई अभियान चल रहा है। और उसी के तहत आज हमारा ये जोन पुंछ के यहाँ पे तमाम फिजिकल टीचर, मास्टर, लेक्चर्स, जोनल ऑफिसरान यहाँ मौजूद हैं। ये हॉकी का ग्राउंड है बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, जिसकी हमने ये आज जो है इसकी हम सफाई कर रहे हैं। तो इसी तरह ये 3 दिन बाकी भी जितने हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड है उनको कर रहे हैं साफ़। और उसी के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी प्ले फील्ड्स हैं, मैं जोनल ऑफिसरान को भी मतलब किया हुआ है कि पूरा जो है उसमें वो सफाई के साथ इस अभियान को जो है बड़े शौक़ और जज्बे के साथ करें, ताकि जो है हमारा मुल्क जो है साफ़ सुथरा रहे। और जब ये साफ़ सुथरा रहेगा तो आने वाला यूथ जो है वो भी सेहतमंद रहेगा और हमारा मुल्क जो है वो कामयाब रहेगा। पुंछ के बालाकोट में फौज ने एक मोटर को तबाह कर दिया है। ये मोटर जंगलाती इलाके में पाया गया था। फौज को इत्तला मिलने के बाद फौज ने इसे तबाह कर दिया। जीओसी जेपी पांडे ने कहा है कि फौज 24 घंटे सरहदों पर अलर्ट है और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने ये बात किरण कुपवाड़ा में मेले के दौरान कही। इस मेले में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन भी मौजूद थे। ये मेला फौज की जानिब से मुनक्किद किया गया था, जिसका मकसद सरहदी टूरिज्म में इजाफा करना था। किरण की तरफ ज्यादा है। हाँ, ये चूंकि मैंने अपनी स्पीच में भी बताया, ये 10-15 दिन पहले मेरी कमांडर साहब से मीटिंग हुई थी और ये आर्मी के थ्रू एक ऑर्गेनाइज हुआ था कैरन मेला के नाम से। और इसमें आपने देखा कि डिफरेंट रंगारंग प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किए गए। एक तो कैरन को जो है टूरिज्म के नक्शे में जो बॉर्डर टूरिज्म का इस वक्त हम नारा लगाए हुए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, उसका एक पार्ट है कि बॉर्डर टूरिज्म डेवलपमेंट हो जाए और कैरन को लोग जाने। इसलिए क्योंकि मीडिया का सबसे बड़ा रोल है कि हर जगह की खूबसूरती को आप अपने तरीके से कवर करें और वहाँ के लोगों की मुश्किलात को भी आप उभारते हैं, वहाँ की डेवलपमेंट को भी आप लोग उभारते हैं। तो उस लिहाज से जो ये कैरन है एक बॉर्डर एरिया है, तो इसको डेवलप करने की ज़रूरत है, टूरिज्म में लाने की ज़रूरत है, जिसका ये पहला स्टेप जो है आर्मी ने उठाया और इसके लिए हम इनके बड़े मशकूर हैं और वेलकम करते हैं। ऐसे ही मैं समझता हूं कि हर साल फिक्स डेट्स पे कैरन मेला होना चाहिए ताकि लोग जो है साल से उसके लिए तैयारी करें, उसमें जुटें, उसमें आएँ और इसको जो है एज ए टूरिज्म सपोर्ट जो है डेवलप किया जा सकता है। और हमने ऑलरेडी बॉर्डर टूरिज्म में इसको उठाया हुआ है।
इस साल हमने 8 लाख का एक सैनिटेशन का यूनिट जो है कैरन ब्लॉक के लिए सैंक्शन किया हुआ है, जिसकी इनागोरेशन भी जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो अभी टूर पे आए थे उन्होंने की है, तो वो भी शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आप बाकी भी काम देख सकते हैं चल रहे हैं। तो अमन, शांति और पीस जो ये है, ये हर चीज की डेवलपमेंट के लिए बड़े जरूरी है। Border village, which is only of 1,400 people, the people who have got together here is a number of about couple of thousand, and everybody is enjoying. I think everybody wants to live life. They require an opportunity and a place to happen. It's the responsibility of the civil society to ensure. We are only enablers. We are just here to ensure that these possibilities happen wherever in remote areas where facilities are possibly difficult to come about. So infrastructure will come around for both sides of the people. It is when there's a ceasefire, then benefits will go to either side, and we should look at it. I think the people should live happily on either side, especially a civilian population. They got nothing to do with conflict. It is a matter of military when something happens, and we should restrict such things only to people of military. इनके लिए हम जितना कर सकें वो हमारे लिए कम है, क्योंकि ये हमारा भाईचारे का नाता है। सबका माहौल में बदलाव है। आई थिंक सिक्योरिटी इज मच मोर बेटर, और जो जनता है वो चाहती है कि टूरिस्ट आएं, लोग रहें, उनका भी फायदा होता है। मेयर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन SMC जुनैद अजीम मट्टू ने बुध के रोज इकबाल पार्क के करीब हलाक होने वाले ML बिंद्रू की रिहाइशगाह का दौरा किया है। सौगार खानदान के साथ उन्होंने इजहार यकजहती की, उनसे मुलाकात की और दिलासा दिया, हौसला बढ़ाया। Heartbreaking, very heartbreaking. Bindru Sahab has served this society. We have seen him since we were kids. ये अटैक बिंद्रू साहब पे नहीं था, ये हमारे माशरे पे, हमारे समाज पे, हर एक कश्मीरी पे अटैक हुआ है। हमें माशरती तौर भी पूरा 100% अनइक्विवोकली कत्ल को कत्ले ना हक कहना पड़ेगा। और पुलिस मेजर्स क्या हैं, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं, सोसाइटल आउटरीच होनी चाहिए। एज ए सोसाइटी हमें खड़ा होना चाहिए, और एज ए सोसाइटी हमें इन एलिमेंट्स के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी। कत्ले नाहक तो कत्ले नाहक होता है, एक इंसान, एक फर्द का कत्ले नाहक तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। मुझे तो लगता है मैं ही क्यों नहीं गई इसके बदले। हमारी तो जरूरत थी नहीं इस दुनिया में, इनकी जरूरत थी। अभी तो पता नहीं कितनों करोड़ों को मदद करने वाले ये आदमी। और बहुत गलत हुआ है, बहुत, ऐसे नहीं होना था। फिर क्या भरोसा अब रह गया? अब रह गया भरोसा? कुछ नहीं रह गया भरोसा। अब क्या पता रास्ते में चल। जिले राजौरी में GOI की जानिब से वार्ड नंबर बताया जा रहा है कि JP पांडे ने कहा है कि फौज 24 घंटे सरहदों पर अलर्ट है। लेकिन हम बात करेंगे जिले राजौरी की। जिले राजौरी में SP सिंह GOI ने वार्ड मेंबरान और आवाम के साथ टाउन हॉल राजौरी में अवामी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। उन्होंने PMAY के मुस्तहकीन को चाबियां हवाले की हैं, और जिले राजौरी में SP सिंह GOI ने वार्ड मेंबरान और आवाम के साथ टाउन हॉल राजौरी में अवामी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। जम्मू कश्मीर लद्दाख में जाएं, लोगों से बात करें, मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार होता है, और यही जमहूरियत की परिभाषा है। मैं यहाँ आया और 11 मीटिंग कल करी थी, आज भी कर रहे हैं। लोगों के समसामयिक समस्याओं को सुन रहे हैं। कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की है, कहीं सड़क की है, कहीं स्कूल की है, कहीं एजुकेशन की है, कहीं अस्पताल की है, तो कहीं मुंसिफी को। अनंतनाग के बिजबहार कॉलेज में मुशायरा मुनक्किद किया गया है, साथ में किताब की रस्म इजराई भी अंजाम दी गई है। बिजबहारा कॉलेज में मुशायरा और किताब की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। महफिल मुशायरा में शोरा इकराम ने अपना कलाम पेश किया। मैं बहुत खुश हूँ
आज मेरी किताब सर्वशुहुल, जिसका नाम मैंने रखा है, सर्वशुहुल की रस्म रुनुमाई हुई। मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं खुश हूँ कि हर कोई इंसान, हर कोई बनी नवा इंसान, उसके दिमाग से कुछ न कुछ निकलता है जो कौम के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन उसको महफूज करने की ज़रूरत होती है। महफूज करने का एक तरीका होता है, वो अदबी दुनिया में अगर कलमकारी हो जाए तो महफूज रहता है, हिस्टोरिकल दुनिया में हिस्ट्री लिखी जाए तो महफूज रहता है। ये शायरी का दुनिया जो है, शायरी भी एक किस्म की कौमी मेमार होती है। शायरी भी एक किस्म का एक एहसास दिलाता है लोगों को कि इंसान का वजूद क्या है, इंसान को करना क्या है, इंसान किस लिए दुनिया में आया है। तो मैंने अपने आप को खुशकिस्मत समझा आज कि पहली किताब मेरी बनाम सर्वशुहुल आज इजरा हुई है, इसकी रस्म रुनुमाई हुई, मरकजी अदबी संगम की तरफ से इसकी बड़ी हौसला अफजाई हुई, तो मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1-2 साल से हम जो भी प्रोग्राम कर रहे थे वो बिल्कुल ऑनलाइन, क्योंकि जो वबा की सूरत थी वो काफ़ी गंभीर सूरत थी। उस वजह से हम कोई तकरीब बिलमुशाफा कर नहीं सके। तो आज बड़े देर के बाद 2 किताबों की रस्म रुनुमाई इस प्रोग्राम में हुई। तो आज बिल्कुल 2 जो मंजे हुए अदीब है वादी जुनूबी कश्मीर के, उनकी किताबों की रस्मी रुनुमाई हुई और इस तकरीब में एक मुशायरा भी होने जा रहा है। आज लोग बिल्कुल पुरजोश थे इस हवाले से, क्योंकि आज बड़े देर के बाद, बड़ी मुद्दत के बाद हम एक दूसरे के साथ बिलमुशाफा मिले। वरना तो हम ऑनलाइन तो प्रोग्राम होते रहते थे। ऑनलाइन हमने 6 किताबें इजरा की, लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि इस फंक्शन में, इस तकरीब में जो मज़ा आज देखने में आया, जो जोश आज देखने में आया, बिल्कुल ये 1-2 साल के बाद आपने खुद देखा कि 2 किताबों की रस्म रुनुमाई हुई, एक मुशायरा भी होने जा रहा है। मराज़त भी संगम, इस सिलसिले में जो हमने बेड़ा उठाया है, इस कश्मीरी ज़बान, कश्मीरी अदब, कश्मीरी जो सकाफ़त है, इसकी जो आबियारी के लिए, इसकी तरक्की और तरवीज के लिए जो हमने बेड़ा उठाया, हम इंशाअल्लाह उसमें भरपूर कोशिश करते रहे। जिले पुलवामा के विचपुरा मोरन जिले पुलवामा में बताया जा रहा है कि दौरान शब चोरों ने एक सेब के बाग से 250 सेब के डिब्बे चोरी कर लिए हैं। जिले पुलवामा के विचपुरा मोरन जिले में ये चोरी का वाकया पेश आया है। सेबों के मालिक का कहना था कि उन्होंने इन सेबों को गुज़िश्ता रोज ही करीब 2 लाख रुपयों में खरीदा था। ताहम जब वो सुबह अपने बाग में आए तो सेब के तमाम डिब्बे खाली पड़े थे। उन्होंने पुलवामा पुलिस से अपील की है कि इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि इस तरह का नुकसान से काश्तकारों को बचाया जा सके। मरन वशपोरा गाँव वन बहुत ऊँट हेवान बहुत बापार करान तो मे रात ऊँट हेतम मल तो लगभग 2.5 लाख रुपये हेतम मल तो अस पैकिंग कर सुबह तो ये सुबह योर सारी ऊँट चूर निमित क्रेट फिर तो बहुत पुलिस स्टेशन पुलवामा SP पुलवामा गुजारिश करान कि ये जल्द अज जल्द तहकीकात कर क्या ओपेक की जानिब से मांग के मुताबिक तेल की पैदावार में इजाफा होने की वजह से घरेलू मार्केट में भी इजाफा हुआ है। ओपेक की जानिब से मांग के मुताबिक तेल की पैदावार में इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उबाल जारी रहने के दबाव में आज लगातार दूसरे दिन मुल्क में पेट्रोल 30 पैसे फी लीटर और डीजल 35 पैसे लीटर महंगा हो गया है। मुसलसल 4 दिनों की तेजी के बाद पीर को इन दोनों ईंधनों की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन मंगल को इसमें इजाफा किया गया। बुध को इसमें एक बार फिर इजाफा हुआ, जिसकी वजह से कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इनकी कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 94 पैसे फी लीटर और डीजल 91 रुपये 42 पैसे फी लीटर तक की तारीखी सतह बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में पेट्रोल 1 रुपये 75 पैसे, डीजल 10 दिनों में 2 रुपये 80 पैसे फी लीटर बढ़ गया। दूसरी तरफ मुसलसल पेट्रोल की कीमतों से आवाम की बरहमी भी जारी है। आवाम का कहना है कि इस तरह तेजी के साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए।
पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए का इजाफा हुआ। एक तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो दूसरी तरफ पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे से आवाम पर एक और बोझ पड़ गया है। इजाफी कीमतों पर आज से अमल होने जा रहा है। आवाम की तरफ से बढ़ती कीमतों को लेकर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। मुल्क में आज कोविड के 18,833 नए केसेस दर्ज हुए हैं। एक्टिव केसेस 2,46,887 बताए गए हैं। अब तक मुल्क में 57,68,03,867 टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज 14,09,825 टेस्ट किए गए थे। बड़गाम में ताजियाती जुलूस निकाला गया। इस मौके पर मातम भी किया गया। मातमी जुलूस में शामिल लोगों ने मातम किया है और बताया जा रहा है कि बड़गाम में ताजियाती जुलूस निकाला गया है। इस मौके पर मातम किया गया। इसमें लोगों ने ताजिया किया है और जुलूस में मातम भी किया गया है। मैं इस पर ये पैगाम यही है उन लोगों के लिए जो लोग कह रहे हैं कि तलवार की नोक पर इस्लाम फैला है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत का दूसरा नाम है। इंसानियत और अखलाक से जिस तरह अरबों लोग जिस तरह इस वक्त मुसलमान है, जिस तरह जुलूस निकल रहे हैं, उसके दिन निकल रहे हैं, ये इस बात की गवाही है कि इस्लाम किस तरह बातिल इस तरह नहीं फैलता है। ये हक था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए ये जुलूस इस वक्त पूरी जो वादी या बाकी स्टेटों में निकलते हैं, ये उसी याद में है कि हमारा आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन हमारे से जुदा हुए और ये ज़ाहिरी वफात है। हम इसको हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पुकारते हैं। क्यों? हमारे नबी हमारे नज़दीक है, हमेशा हमारे नज़दीक रहेंगे। लेकिन अब मैसेज ये है इसके दौरान कि हम उन लम्हों को जिस तरह उन्होंने गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया अपने अखलाक और अपने हुनर से, अपने इल्म से, अपने हर जो भी। आखिर में हेडलाइंस पर एक मर्तबा फिर नजर डालेंगे। वादी कश्मीर में सख्त तरीन सिक्योरिटी, अमित शाह का दौरा मुतवक्को। पुलिस ने गुज़िश्ता शब हमलों के ज़िमन में 4 अफराद को गिरफ्तार किया। कश्मीर में आम शहरियों की हलाकत पर फारूक अब्दुल्ला जज्बाती हो गए। जम्मू और दीगर मकामात पर एहतिजाजी मुजाहरे। महलूक पंडित की दुख्तर भी जज्बाती हो गई। जिले गांदरबल में मिसाली शादियां, बाबावेल गांव में नहीं ली जाती हैं जहेज की रकम। फौज किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है, GOC JP पांडे का बयान। किरण कुपवाड़ा में फौज की जानिब से मेले का इनेकाद। और जिले पुलवामा के विछपुरा में चोरों ने 2 लाख रुपए के सेब चोरी कर लिए। पुलिस मसरूफ तहकीकात। कश्मीर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आजम अली खान, यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।